In this video, we will provide solutions with explanations for coding decoding exercise number 2. तो इस वीडियो में हम कोडिंग डीकोडिंग एक्सरसाइज नंबर 2 के हल बताएंगे पूरी तफसील के साथ, पूरे डिटेल के साथ. If acne is coded as 3, 7, 29, 11, boil will be coded as. These are the 4 options for the code of boil. So we have to find out which is the right code for boil as per the code of this one which has been given for acne. So we have to find out how we have arrived at this code for acne. तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि एक्ने का जो कोड दिया हुआ है इस पर सवाल देने वाला पहुंचा कैसे है, और फिर हम निकालेंगे कि बॉयल का कोड इन चार में से कौन सा होगा. तो अब सोल्यूशन इस तरह है कि नॉर्मल सीरियल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 14, ई इज इक्वल टू 5. अर्थात ए का क्रमांक इंग्लिश की अल्फाबेट में 1 होता है, सी का 3 होता है, एन का 14 होता है और ई का 5 होता है. लेकिन जो दिए हुए कोड हैं वो इस तरह हैं: ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 7, एन इज इक्वल टू 29, ई इज इक्वल टू 11. द एक्चुअल सीरियल ऑर्डर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 14, ई इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू द serial of the alphabet in English. And the given codes are for A 3, C 7, N 29, E 11. So we have to find out how the composer has arrived at this code. So first of all, we will take the differences of these numbers. So A, the given code is 3 and the actual code is 1. So difference is 2. C's given code is 7 and actual code is 3. So difference is 4. N's given code is 29 and the actual serial number is 14. So difference is 15. E's code is 11 and actual serial number is 5. So difference is 6. तो यहाँ पे देखिए ए का जो दिया हुआ कोड है वो 3 है और इसका क्रमांक 1 होता है, तो जो फर्क है वो 2 है, यानी अंतर 2 हो गया. सी में 7 दिया हुआ है, 3 इसका अपना क्रमांक होता है, तो इस तरह से अंतर 4 हो गया. एन में ये कोड दिया हुआ है 29 और 14 इसका अपना क्रमांक होता है, तो अंतर 15 हो गया. ई का दिया हुआ 11 है, अपना इसका क्रमांक 5 होता है, इसलिए अंतर 6 हो गया. तो ये जो दिए हुए क्रमांक हैं यानी कोड हैं और ये जो इनका अंतर है, या आप यूं समझ लीजिए जो अपना सीरियल है और इसमें जो कि फर्क आया है, एक खास रिश्ता है. देखिए इसका सीरियल 1 है तो अंतर 2 है, सीरियल 3 है तो अंतर 4 है, सीरियल 14 है तो अंतर 15 है, सीरियल 5 है तो अंतर 6 है, यानी 1 का फर्क है. जो अपना इन अक्षरों का सीरियल है उससे जो अंतर है वो एक ज़्यादा है. अर्थात अगर इस सीरियल में ये अंतर जोड़ दिया जाए और ये अंतर इसके अपने सीरियल से 1 ज़्यादा है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 15 + 14 इज इक्वल टू 29, 5 + 6 इज इक्वल टू 11. तो A, the actual serial number is 1 and the difference is 2. So there is a relation. There is one difference between actual serial number and the difference. So if we add this difference in the actual serial number, we will get the given code. That means 1 + 2 is equal to 3, 3 + 4 is equal to 7, 14 + 15 is equal to 29, 5 + 6 is equal to 11. So we have analyzed these codes here. Therefore, the asked code is
for Boyle. Similarly, we will find out the code of Boyle. So actual serial number of B is 2, actual serial number of O is 15, actual serial number of I is 9, actual serial number of L is 12. So we will add one more than 2, yani 3. So 2 plus 3 is equal to 5, 15 plus 16 is equal to 31, 9 plus 10 is equal to 19, 12 plus 13 is equal to 25. तो देखिए B, O, I और L इनके अपने जो क्रमांक हैं वो B का 2 है, O का 15 है, I का 9 है और L का 12 है. तो इससे एक अधिक नंबर, यानी 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आएगा, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 9 में 10 जोड़ेंगे 19 आएगा, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आएगा. अर्थात B का कोड इस कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा 5, 31, 19, 25. Therefore, the code which we have calculated over here according to the definition which was given in here in the question, because Acme's code is 372911. So according to this theory, we have calculated the code for Boyle. So the code should be 5, 31, 19, 25. In a certain code, Michael is coded as JGBHBGO. In this code, America will be written as. So there are 4 code options are given and we have to choose the right code for America. So first of all, we will find out how they have arrived at the code JGBHBGO for Michael. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइकल के लिए जो इन्होंने ये कोड दिया है, इस कोड पे ये पहुंचे कैसे हैं, और फिर हम अमेरिका के लिए जो सही कोड होगा इन 4 में से वो छांट के बताएंगे. तो देखिए सबसे पहले मैंने माइकल यहाँ पे लिखा है और ये जो कोड है इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसका इससे संबंध जानने की कोशिश की है. So I have written Michael over here and the given code on the same format here. So as we observe, J comes 2 letters before M, G comes 1 letter before I, and B comes 1 letter before C, and H is common, B comes after A, G comes after E, F, and O comes after L, M, N. So in the first case, J is 3 letters earlier, G is 2 letters earlier, B is 1 letter earlier, and H is common. B comes after A, G comes 2 letters after E, and O comes 3 letters after L. So we will use the same pattern for America. So I have written here America. So before A, we find Z, Y, and X. So X will be the code for A, and before M, we have L and then K. So K will be the code for M, and before D, we have, before E, we have D. So D will be the code for E, and R will remain as it is, and I will be converted to J because it comes after I. E comes after C and D. So the code for C will be E, and the code for A will be D because it comes after 3 letters A, B, C, and then D. So we have used the same pattern which was given. Therefore, the code for America should be X, K, D, R, J, E, D. Therefore, I have written the code for America is X, K, D, R, J, E, D. That is option C. तो यहाँ पे देखिए माइकल मैंने लिख दिया है और इससे
दो अक्षर पीछे अगर जाएंगे तो हमें जे मिलेगा जो इसका कोड है, एक अक्षर पीछे जाएंगे तो जी मिलेगा जो इसका कोड है, और सी से ठीक पहले बी आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगला एच है, एच यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी दोनों में कॉमन है। ए के एक अक्षर बाद में जाएंगे तो बी मिलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ था। ई से एक अक्षर के बाद जी आएगा यानी ई एफ जी, और एल के 3 अक्षर बाद यानी एल एम एन फिर ओ आता है। तो ये पैटर्न है, देखिए ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है लाइन पूरी माइकल को, और जिसमें एच कॉमन है, 2 अक्षर पीछे जे है, एक अक्षर पीछे जी है, और सी से बी ठीक पीछे है और एच कॉमन है, बी ए के बाद आता है, ई के एक अक्षर बाद जी आता है और एल के 2 अक्षर बाद ओ आता है। तो यही पैटर्न हम अमेरिका में भी फॉलो करेंगे। तो अमेरिका से 2 अक्षर पीछे एक्स आएगा, एम से एक अक्षर पीछे के आएगा, ई से पहले डी आएगा, आर दोनों में कॉमन रहेगा, आई के बाद जे आएगा, सी और डी के बाद ई आएगा, ए के बाद बी सी और फिर डी आएगा। तो अमेरिका का कोड जो है एक्स के डी आर जे ई डी होगा। तो ये उसका कोड मैंने लिखा है, यानी अमेरिका का कोड एक्स के डी आर जे ई डी। तो इस दिए हुए प्रश्न के अनुसार सी इसका सही उत्तर है। इफ रीचिंग टुमारो इज कोडेड एज एच ओ जे आई डी बी एफ एस एक्स पी डबल एस पी एन बी यू, then U I H J M G E F Z B M F E B. That means they have given the code for this phrase reaching tomorrow, and it has been coded as this one. And this is the code of some phrase. We have to find out for which phrase they have used this code. And there are 4 phrases which are given in the option, and we have to find the correct option for this code. तो यहाँ पे देखिए रीचिंग टुमारो, ये 2 शब्द हैं और इनके लिए ये कोड दिए गए, और ये 2 कोड दिए हैं, इनके लिए हमें वो शब्द चुनना है जो इनमें से, ये 2 शब्द के जोड़े हैं, ट्रेन डिले, फ्लाइट डिलेड, कैंसिल जर्नी, फ्लाइट कैंसिल। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा वो हमें छांटना है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से इस कोड पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला शब्द है रीचिंग, वो हमने यहाँ पे ले लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाउ दे हैव अराइव्ड एट दिस कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द वर्ड रीचिंग. So I have written reaching here, and if we add 1 to each letter, why I have done that? Because I have seen that here it is R and this is S. This is G, this is H. So H comes after G, S comes after R. Therefore I have added 1 to each letter. That means I have taken the next letter to the given letters. That means S for R, F for E, B for A, D for C, I for H, J for I, O for N, H for G. And then I have reversed the order. So S has gone to the end and H has gone to the first position. So I find out that this is the code which was given here. तो देखिए सबसे पहले मैंने रीचिंग लिखा था, और जैसा कि हम देख रहे हैं रीचिंग में यहाँ R है, तो यहाँ पे कोड में आखिर में S है। तो R और S का रिश्ता हमें पता है कि S जो है R के बाद आता है, और इधर H है, यहाँ G है, तो H G के बाद आता है। इसी तरह A के बाद B आता है। तो यानी इन अक्षरों में एक जोड़ दिया गया है, तो वो एक एक जोड़ के यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इन अक्षरों का क्रम
बदल दिया, यानी उल्टा कर दिया, तो हमें ये अक्षर मिले। अब हम मिला के देखते हैं कि ये वही अक्षर हैं जो यहाँ दिए हुए थे, यानी HOJIDDFS वही यहाँ पे भी दिया हुआ था। यानी इस तरह से ये इस कोड पर पहुंचे हैं कि एक एक जोड़ा और उसको पलट दिया। तो ऐसे ही हमने टुमारो का यहाँ पे देखा, टुमारो को लिखा, उसमें एक एक जोड़ा और उसको पलट दिया, तो ये कोड मिल गया। ये इसका कोड है, टुमारो का कोड ये है। सो सिमिलरली we have written tomorrow and we have added one to each letter, then we will get the new letters U, P, N, P, S, S, P, X. Then we have reversed the order of these letters. That means we have taken X to the first position and U to the last position. So we will get X, P, S, S, P, N, P, U. That is the given code for tomorrow. So similarly, we will do the process for these codes. So here we have added, but we have got the code and we have to find out the phrase. So we have to subtract from each one and then we have to reverse the order. So I have done the same thing. So given code is this much. So reversing the order, we get this one. So first word has been reversed as this one and second word has been reversed as this one. Then we will add one to each letter. That means we will get the next letter to these letters. So F for G, L for M, I for J, G for H, H for I, T for U, D for E, E for F, L for M, A for B, Y for Z, E for F, D for E. तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये कोड हमने फाइंड आउट किया कि इन सब में कोड में एक एक जोड़ा गया है, और अगर कोड से शब्द हम मालूम करेंगे तो वहाँ पे हमें उल्टा काम करना पड़ेगा, यानी ये घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कोड को मैंने लिखा और उसको फिर उल्टा कर दिया, यानी कोड का ये हिस्सा जो था UIHJMG इसको पलट दिया तो ये हो गया GMJHIU, और EFZBMFE को पलट दिया तो ये हो गया EFMBZFE। अब इसमें एक एक जोड़ दिया, अर्थात इससे अगला जो अक्षर है हर अक्षर का अगला अक्षर वो यहाँ पे लिख दिया। तो G का F हो जाएगा, M का L हो जाएगा, J का I हो जाएगा, H का G हो जाएगा, I का H हो जाएगा, U का T हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इनमें से एक एक घटा दिया, तो घटाया तो ये G से पहले F हो जाएगा, M से पहले L हो जाएगा, J से पहले I हो जाएगा, H से पहले G हो जाएगा, I से पहले H हो जाएगा, U से पहले T, E से पहले D, F से पहले E, M से पहले L, B से पहले A, Z से पहले Y, F से पहले E, E से पहले D। तो यानी एक एक घटाने पर या एक अक्षर पहले जाने पर हमें मिलता है फ्लाइट डिलेड। यानी ये जो कोड दिया हुआ था, तो इस कोड का जो शब्द है जिसके लिए कोड बनाया गया था वो है फ्लाइट डिलेड, जो कि इसमें बी ऑप्शन है। दैट मीन्स बी, फ्लाइट डिलेड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस कोड। इफ क्रिकेटर इज कोडेड एज DQJBLDUDS, player will be coded as. So they have given 4 options. So we have to choose the right option for player. So यहाँ पे क्रिकेटर के लिए ये कोड दिया गया था और प्लेयर के लिए क्या कोड होगा वो हमें इन 4 में से चुनना है कि सही कोड प्लेयर का क्या होगा, वो इसमें से छांटना है। तो अब हम देखेंगे कि गिवन कोड जो था वो क्रिकेटर के लिए ये था, तो इसका और इसका आपस में संबंध क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिकेटर एंड इट्स कोड। सो आई हैव रिटन क्रिकेटर एंड द कोड underneath. So what is the relation between C and D? D comes after C and Q comes
before R. So we have to subtract 1. Yeah, we have to go back to find the letter, and next I find that J comes after I. That means one place they are going next letter, and the second position they are going back to last letter. Similarly, for next letter they are going to next letter, then again they are going back, then they are coming forward, going back, coming forward, going back, coming forward. सो यहाँ पे देखने पे पता है चलता है कि क्रिकेटर का जो कोड दिया था, यहाँ पे पहले स्थान में ये एक शब्द आगे, एक लेटर आगे गए, एक अक्षर आगे, दूसरे में एक अक्षर पीछे चले गए, फिर एक अक्षर आगे आ गए, फिर एक अक्षर पीछे चले गए, फिर एक अक्षर आगे आ गए, फिर एक अक्षर पीछे चले गए, फिर एक अक्षर आगे आ गए, फिर एक अक्षर पीछे चले गए, फिर एक अक्षर आगे आ गए। यानी एक पोजीशन पे ये आगे जाते हैं, दूसरे में पीछे चले जाते हैं, एक में एक जोड़ते हैं, एक में एक घटाते हैं। इस तरह से इन्होंने ये कोड निकाला है। तो यही काम अब हम प्लेयर के साथ करेंगे। प्लेयर यहाँ पे दिया हुआ था और इसका कोड निकालने के लिए भी वैसा ही करेंगे। पी के बाद क्यू करेंगे, एल से पहले के करेंगे, ए के बाद बी, वाई से पहले एक्स, ई के बाद एफ, आर से पहले क्यू। सो सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई which we have observed in cricketers code. So for player we will go one letter forward, then one letter backward, one letter forward, one letter backward, one letter forward, one letter backward. So we will get Q, K, B, X, F, Q. So this will be the code for player. So for player this is the code, and this code is same as option C. So option C is the right answer. If fashion is coded as NFOAISH, how will treatise be coded in that language? So they have given 4 options and we have to choose the right code for treatise. तो यहाँ पे देखिए फैशन का कोड NFOAISH दिया हुआ है और ट्रीटीज के लिए हमें कोड मालूम करना है जो इन दिए गए 4 कोडों में से एक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये इस कोड पर कैसे पहुंचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन फैशन ओवर हियर एंड आई हैव गिवन वन सीरियल नंबर टू ईच लेटर बिकॉज as I observed they are using the same letters for the given word. So they have not changed the letters, but they have just changed the order. So we have to find out on which position which letter has gone. So first of all, I will give a serial number of the letters. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I have given for fashion. So now I have written the code and I observe that N was the 7th letter and here it has been given the first position. F was the first letter, it has been given the second position. So first of all they have taken 7, then 1, then they have taken 6 letter, then they have taken the second letter, then they have taken the 5th letter, then 3rd letter, and then 4th letter. So they have changed as the last one, then the first one, then the second last, then the second from the beginning, then third from the last, then third from the beginning, and then the remaining letter. So we will use the same pattern over here. तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं फैशन के लिए मैंने ये नंबर दे दिए, इसमें अक्षरों के हिसाब से बढ़ते क्रम में इनको रख दिया, 1 से 7 तक गिनती दे दी। अब जो कोड लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये कोड जो है इस क्रम में इनका क्रम क्या था वो यहाँ पे मैंने इनके नीचे लिख दिया। एन का जैसे 7 था, एफ का 1 था। तो पता क्या चला कि जो सबसे आखिरी अक्षर था वो सबसे पहले ले आए, जो पहला था वो दूसरे स्थान पर ले आए, जो छठा था वो तीसरे स्थान पर ले आए, जो दूसरा था वो चौथे स्थान पे ले आए, जो 5वां था
वो 5वें पे ही रहा, और तीसरा जो है वो 7वें, छठे पे आ गया, और जो चौथा था वो 7वें पे चला गया। यानी एक आखिर का, फिर एक शुरू का, फिर उससे एक पहले वाला, फिर उसके एक बाद वाला, फिर आखिर से तीसरा, फिर शुरू से तीसरा, और फिर जो बचा हुआ अक्षर था उसका सीरियल ले लिया। तो इस तरह से ये इस कोड पर पहुंचे हैं। तो यही काम अब हम ट्रिटीज के लिए करेंगे। ट्रिटीज का भी हमने उसी तरह सीरियल दे दिया, और यहाँ जो आखिरी था वो पहले लिख दिया, फिर एक ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 लिख लिया। तो इनके जो अक्षर आए अब, यानी ये नंबर जिन पोजीशंस पे थे अब हमने वो लिख दिए। तो STERIIT ये कोड होगा ट्रिटीज का। So we have done the same process for treaties. I have written treaties and I have given the serial order for each letter 1 to 7, and then I have changed the order as it was changed in the fashion and its code. So the last one goes to the first one, then first one, then the 6th place, then the 2nd place, then 5th place, then 3rd place, then 4th place. So now I will get the letters for these serials. So 7 was S, 1 was T, 6 was E, 2nd was R, 5th was I, 3rd was I, and 4th was T. So the code for treatise is STERIIT. That means code for treatise is STERIIT, which is the second option according to the question. So the right answer for the code of treatise is option B. So option B is the right answer. If politics is coded as OPILITSC, how will articles be coded in that language? And they are given 4 options. So we have to find out the code for articles, and that will be out of these 4. So we have to choose the right answer from these 4 codes. तो यहाँ पे politics का कोड ये दिया हुआ है, और आर्टिकल का कोड हमें मालूम करना है, जो कि इन 4 में से ही एक होना चाहिए, और वो छांट के हम सही उत्तर क्या है वो बताएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसको एक क्रम दे दिया। So first of all I have written politics and I have given the serial order for each letter 1 to 8. Now I have written the code for politics, and as per the serial of the politics, I use the serial for these coded words. So the serial for O was 2, and serial for P was 1, serial for I was 4, and serial for L was 3, serial for I was 6, and serial for T was 5, serial for S was 8, and serial for C was 7. So as we see that they have changed the pairs interchangeably. That means they have divided the whole word in 4 sets, and taking 4 pairs, they have interchanged the order. So the second position has gone to the first position, first to second, 4 to third, third to 4, 6 to 5, 5 to 7, 5 to 6, 8 to 7, and 6 to 7 to 8. तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से चेंज किया है। देखिए पॉलिटिक्स के मैंने क्रम संख्याएं लिखी थी, इसके बाद एक कोड लिख दिया। अब इस कोड में अगर हम इससे सीरियल नंबर डालेंगे तो 1 नंबर यहाँ पर आ गया, 2 नंबर यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, यानी जोड़े बना के उन जोड़ों को आपस में बदल दिया है। पहला जोड़ा
फर्स्ट सेकंड का बनाया, फिर थर्ड फोर का, फिर फिफ्थ सिक्स का, फिर सेवन एट का, और यहाँ पे पोजीशंस इनकी हर जोड़े में चेंज कर दी। तो दो वाला एक की जगह, एक वाला दो की जगह, इसी तरह ये इसकी जगह, 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 ये इसकी जगह। तो इस तरह से हमें कोड मिला है। तो यही काम अब हम आर्टिकल्स में करेंगे। तो आर्टिकल को भी मैंने उसी तरह लिख दिया और इसको भी वैसे ही क्रमांक दे दिया, और इसमें भी जोड़े बना के इनके अक्षरों को बदल दिया। यानी दो को यहाँ पे ले आए, एक को यहाँ, एक पे क्या था वो अक्षर यहाँ लिख दिया, दो पे क्या था वो अक्षर यही लिख दिया। इसी तरह से पूरा काम किया है। तो एज वी ऑब्जर्व इन द गिवन वर्ड एंड code, we apply the same procedure over here. I have written articles and I have given the serial number for each letter. Then I interchange the pairs numbers which has been divided in 4 pairs. So second to first, first to second, fourth to third, third to fourth, 6 to 5, 5 to 6, 7 to 8, 8 to 7. So we will get the code for articles as RAITLCSE. तो इस तरह से आर्टिकल का हमें कोड मिल गया जो कि है RAITLCSE, यानी आर्टिकल्स का ये कोड होगा। और जैसा कि हम उत्तर में देख रहे हैं यहाँ के डी के स्थान पे यही कोड मौजूद है, तो यानी इस पृष्ठ का उत्तर डी होगा। If in a code language circle is coded as XRIXOB, how would you code square in the same language? So 4 options have been given and we have to choose the right option for the code of square out of these 4. तो यहाँ पे सर्किल के लिए ये कोड दिया गया है और स्क्वायर का कोड हमें इन 4 में से छांटना है। तो सबसे पहले जैसा हम देख रहे हैं कि सर्किल में शुरू के शब्द आए, शुरू के अक्षर आए हैं और कोड जो है इसमें आखिर के अक्षर आए, तो इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में 2 तरह के क्रम दिए जा सकते हैं, एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। तो इन दोनों को ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्किल यहाँ पे लिखा और इसका जो सीरियल है वो सीरियल हमने देख के यहाँ से डाल दिए। जैसे कि सी का 3 था, आई का 9 था, आर का 18 था, सी का 3 था, इसके बाद एल का 12 था और ई का 5 था। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और इन कोडों के नंबर अब हम पिछले क्रम से देखेंगे। जैसे एक्स का 3 है, आर का 9 है, आई का 18 है और सी एक्स का 3 है, ओ का 12 है और ई का बी का 5 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये क्रमांक और ये क्रमांक एक ही जैसे, यानी शब्द का जो सीधा क्रमांक है यानी बढ़ते क्रम में, वही कोड का उल्टे क्रम में है, रिवर्स सीरियल ऑर्डर में है। तो यानी इसको सीधा इन कोडों के विपरीत सीरियल लेके, विपरीत क्रमांक लेके वो अक्षर ले लिए गए। तो यही प्रोसीजर हम स्क्वायर में लगाएंगे। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड द सीरियल नंबर्स ऑफ सर्किल are 3, 9, 18, 3, 12 and 5. Then we have written the code number here, and if we find the reverse serial order of these codes, we find that these serials are the same as the serials of the word. That means they have used the same reverse serial for the word and then they have obtained this code. So we will use the same procedure for square. So for square, these are the serial numbers, and for these serial numbers, the reverse serial will be 19 for H, 17
17 for J, 21 for F, and 1 for Z, and 18 for I, and 5 for V. Therefore, the code for square is HJFZIV. तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था वही हमने यहाँ पे भी घटनाक्रम को लेके और इसको हल किया है। तो स्क्वायर का ये कोड दिए हुए थे और इन्हीं कोड को अब हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, यानी उल्टे क्रम में, और इन्हीं को उल्टे क्रम में देखेंगे कि इसके लिए कौन से अक्षर आते हैं। तो 19 के लिए हमें H मिलेगा, 17 के लिए J मिलेगा, 21 के लिए F, 1 के लिए Z, 18 के लिए I और 5 के लिए B। तो यानी यही इसका कोड होगा, यानी HJFZIV। तो ये कोड यहाँ पे ए पे दिया हुआ है। तो यानी ये चार जो कोड दिए थे इसमें से ए ही सही उत्तर है। If in a code language circle is coded as XRIXOB, how would you code square in the same language? So 4 options have been given and we have to choose the right option for the code of square out of these 4. तो यहाँ पे सर्किल के लिए ये कोड दिया गया है और स्क्वायर का कोड हमें इन 4 में से छांटना है। तो सबसे पहले जैसा हम देख रहे हैं कि सर्किल में शुरू के शब्द आए, शुरू के अक्षर आए हैं और कोड जो है इसमें आखिर के अक्षर आए, तो इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में 2 तरह के क्रम दिए जा सकते हैं, एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। तो इन दोनों को ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्किल यहाँ पे लिखा और इसका जो सीरियल है वो सीरियल हमने देख के यहाँ से डाल दिए। जैसे कि C का 3 था, I का 9 था, R का 18 था, C का 3 था, इसके बाद L का 12 था और E का 5 था। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और इन कोडों के नंबर अब हम पिछले क्रम से देखेंगे। जैसे X का 3 है, R का 9 है, I का 18 है और X का 3 है, O का 12 है और B का 5 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये क्रमांक और ये क्रमांक एक ही जैसे, यानी शब्द का जो सीधा क्रमांक है यानी बढ़ते क्रम में, वही कोड का उल्टे क्रम में है, रिवर्स सीरियल ऑर्डर में है। तो यानी इसको सीधा इन कोडों के विपरीत सीरियल लेके, विपरीत क्रमांक लेके वो अक्षर ले लिए गए। तो यही प्रोसीजर हम स्क्वायर में लगाएंगे। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड द सीरियल नंबर्स ऑफ सर्किल are 3, 9, 18, 3, 12 and 5. Then we have written the code number here, and if we find the reverse serial order of these codes, we find that these serials are the same as the serials of the word. That means they have used the same reverse serial for the word and then they have obtained this code. So we will use the same procedure for square. So for square, these are the serial numbers, and for these serial numbers, the reverse serial will be 19 for H, 17 for J, 21 for F, and 1 for Z, and 18 for I, and 5 for V. Therefore, the code for square is HJFZIV. तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था वही हमने यहाँ पे भी घटनाक्रम को लेके और इसको हल किया है।
तो स्क्वायर का ये कोड दिए हुए थे और इन्हीं कोड को अब हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे यानी उल्टे क्रम में, और इन्हीं को उल्टे क्रम में देखेंगे कि इसके लिए कौन से अक्षर आते हैं। तो 19 के लिए हमें H मिलेगा, 17 के लिए J मिलेगा, 21 के लिए F, 1 के लिए Z, 18 के लिए I और 5 के लिए B। तो यानी यही इसका कोड होगा, यानी H J F Z I V। तो ये कोड यहाँ पे ए पे दिया हुआ है, तो यानी ये चार जो कोड दिए थे इसमें से ए ही सही उत्तर है। इफ इन ए कोड लैंग्वेज सर्किल इज कोडेड एज XRIXOB, हाउ वुड यू कोड स्क्वायर इन द सेम लैंग्वेज? So 4 options have been given and we have to choose the right option for the code of square out of these 4. तो यहाँ पे सर्किल के लिए ये कोड दिया गया है और स्क्वायर का कोड हमें इन चार में से छांटना है। तो सबसे पहले जैसा हम देख रहे हैं कि सर्किल में शुरू के शब्द आए, शुरू के अक्षर आए हैं और कोड जो है इसमें आखिर के अक्षर आए, तो इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दो तरह के क्रम दिए जा सकते हैं, एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। तो इन दोनों को ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्किल यहाँ पे लिखा और इसका जो सीरियल है वो सीरियल हमने देख के यहाँ से डाल दिए। जैसे कि C का 3 था, I का 9 था, R का 18 था, C का 3 था, इसके बाद L का 12 था और E का 5 था। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और इन कोडों के नंबर अब हम पिछले क्रम से देखेंगे। जैसे X का 3 है, R का 9 है, I का 18 है और X का 3 है, O का 12 है और B का 5 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये क्रमांक और ये क्रमांक एक ही जैसे, यानी शब्द का जो सीधा क्रमांक है यानी बढ़ते क्रम में, वही कोड का उल्टे क्रम में है, रिवर्स सीरियल ऑर्डर में है। तो यानी इसको सीधा इन कोडों के विपरीत सीरियल लेके, विपरीत क्रमांक लेके वो अक्षर ले लिए गए। तो यही प्रोसीजर हम स्क्वायर में लगाएंगे। एज वी हैव ऑब्जर्व द सीरियल नंबर्स ऑफ सर्किल are 3, 9, 18, 3, 12 and 5. Then we have written the code number here, and if we find the reverse serial order of these codes, we find that these serials are the same as the serials of the word. That means they have used the same reverse serial for the word and then they have obtained this code. So we will use the same procedure for square. So for square, these are the serial numbers, and for these serial numbers, the reverse serial will be 19 for H, 17 for J, 21 for F, and 1 for Z, and 18 for I, and 5 for V. Therefore, the code for square is HJFZIV. तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था वही हमने यहाँ पे भी घटनाक्रम को लेके और इसको हल किया है। तो स्क्वायर का ये कोड दिए हुए थे और इन्हीं कोड को अब हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे यानी उल्टे क्रम में, और इन्हीं को उल्टे क्रम में देखेंगे कि इसके लिए कौन से अक्षर आते हैं। तो 19 के लिए हमें H मिलेगा, 17 के लिए J मिलेगा, 21 के लिए F, 1 के लिए Z, 18 के लिए I और 5 के लिए B। तो यानी यही इसका कोड होगा, यानी HJFZIV। तो ये कोड यहाँ पे
ए पे दिया हुआ है, तो यानी ये चार जो कोड दिए थे इसमें से ए ही सही उत्तर है। If player is coded as 21, 15, 26, 9, 22, how would BREIF be coded in the same language? And they have given the 4 options of the codes for BREIF. So as we observe that for player A is in the middle, and the middle code is 26, which is the reverse serial order of A. That means they are using the reverse serial number for player, and these are the codes for player. तो जैसा देख के हमें पता चलता है कि प्लेयर में A बीच में आता है और बीच के अक्षर के लिए इन्होंने 26 कोड लिया है। तो इसी पैटर्न पर अब हम BREIF को भी कोड देंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे जैसा हम देखते हैं A का 26 जो है उल्टे क्रम में होता है, तो यहाँ पे प्लेयर लिखा हमने और उल्टे क्रम में इनके सीरियल क्या होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इनका कोड है। तो देखिए L का 15 होता है, F का 21 होता है, A का 26, R का 9, E का 22। तो यही कोड यहाँ पे दिया हुआ था, यानी उल्टे क्रम में इनके क्रमांक क्या हैं वही इनका कोड है। तो यही काम अब हम BREIF के लिए करेंगे। B का उल्टे क्रम में 25 होता है, R का उल्टे क्रम में 9 होता है, E का उल्टे क्रम में 22 होता है, I का उल्टे क्रम में 18 होता है, F का उल्टे क्रम में 21 होता है। तो यानी 25, 9, 22, 18, 21, यानी D ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। तो इसलिए as we have observed in the player that 26 was given the code for A, that means they are using the reverse serial order for these letters. So reverse serial order for F is 21, L for 15, A for 26, R for 9, E for 22. The same pattern we will use for the word BREIF. So the reverse serial order for B is 25, 9 for R, 22 for E, 18 for I, 21 for F. Therefore, for this word, the serial is 25, 9, 22, 18, 21. And this is the option D. That means D is the right answer for this question. If in a certain code language, utensil is coded as WV, GP, UKN, which word would be coded as BM, SF, XG? So they have given 4 options. We have to choose the word from these 4. So यहाँ पे यूटेंसिल का कोड ये दिया हुआ था और ये कोड दिया हुआ है जिसके लिए हमें शब्द चुनना है कि इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द होगा जिसका ये कोड है। तो जैसा यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ U से शुरू हो रहा है, यहाँ W से, इसके बाद T है, यहाँ B है, यहाँ L है, यहाँ N है। तो UVW यानी एक अक्षर बीच में है, यानी एक अक्षर छोड़ के ये कोड आ रहा है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में इनके कोड क्या होंगे वो हमने लिख दिए। यूटेंसिल के ये कोड हैं और ये जो यहाँ पे कोड दिया हुआ था वो लिखा, इसके कोड क्या होंगे वो भी हमने लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए सब में 2 का फर्क है, 21, 23, 20, 22, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 9, 11, 12, 14. So as we have observed that the word utensil starts with U and this code starts with W, and we know that W comes one letter after U, UVW. So I have written utensil and the serial numbers of each letter. So U21, T20, E5, N14, S19, I9, L12. Then I have written the code. And for each letter, I have written the serial numbers of the codes. So 23 for W,
V22, G7, P16, U21, K11 and 14, and we find that there is a difference of 2 in each number. So 20, 22, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 9, 11, 12, 14 and so on. So to find out the word for this code, we have to do the reverse process. That means we have to subtract 2 from each serial number of the given code. तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि यूटेंसिल के जो अक्षर थे, इनका जो सीरियल था और जो कोड है उसके सीरियल में 2 का अंतर था, यहाँ 2 जोड़ा गया है। तो अब अगर हमें कोड से वापस शब्द चाहिए तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमने अगर जोड़ा था तो यहाँ घटा देंगे। तो पहले जो कोड दिया हुआ था उसका हमने सारे क्रमांक लिख दिए और इनमें से सब में से 2-2 घटा दिया। तो 4 में से 2 घटाए तो 2 आ जाएंगे, 13 में से 2 घटाए 11 आ गए, 19 में से 2 घटाए 17 आ गए, 6 में से 2 घटाए 4 आ गए, 24 में से 2 घटाए 22, 7 में से 2 घटाए 5। अब हम देखेंगे कि ये सीरियल नंबर किन अक्षरों के हैं। तो यहाँ 2 के लिए B मिलेगा, 11 के लिए K, 17 के लिए Q, 4 के लिए D, 22 के लिए V और 5 के लिए E। तो ये B, K, Q, D, V यही वो अक्षर होगा जो इस कोड के लिए सही होगा, यानी ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। सो as we had observed here, the word has these serials and the code has these serials, and there is a difference of 2, yani in the code each letter has been added 2, then we get the code of serial of the code. That means 21 to 23, 20 to 22 and so on. So we'll use the same procedure but in a reverse order, because here we have got the code and we have to find the word. So here we had added, and in this case we will subtract 2. So the codes for D, M, S, F, X, G is 4, 13, 19, 6, 24 and 7. So we will subtract 2 from each number, we get 2, 11, 17, 4, 22, 5. And for these serial numbers, the letters are B, K, Q, D, V, E. That means B, K, Q, D, V, E is the right option. That means answer D is the right answer. If in code language remote is coded as ROTEME, which word would be coded as this much? So basically we have to find out the word for which the code is this one. So we have to choose the option from these 4 options and that will be the right answer. So first of all, we'll observe what are the letters which are used in the word and which are the letters which are used in the code. I find that both are the same. That means same letters have been reordered. तो यहाँ पे जैसा कि देख के पता चलता है, रिमोट के लिए ये कोड दिया गया था ROTEME, और यहाँ पे ये कोड दिया है, इसके लिए हमें शब्द चुनना है कि किस शब्द का ये कोड होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में से एक छांटना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो जैसा देख के पता चलता है जो अक्षर रिमोट में यूज किए गए हैं वही कोड में दिए गए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका सीरियल नंबर डाल देते हैं। तो वही यहाँ पे किया है, वर्ड रिमोट लिखा मैंने और इसके हर अक्षर को क्रमांक दे दिए। ये अल्फाबेट वाले क्रमांक नहीं है, बल्कि इस शब्द के अंदर जो इसका क्रम है वो हमने दे दिया। तो इसका कोड ये दिया हुआ है। अब इन अक्षरों के लिए इसमें से कौन सा क्रम है वो हमने यहाँ चुन के लिख दिया। तो ये क्रमांक उस कोड का होगा जो दिया हुआ था। तो यही केस इसके लिए भी सही होगा। अब यहाँ पे यही क्रम हम इस कोड को दे देंगे और फिर इसको सही ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्रम हमने यही जो यहाँ पे आया था 1 4 5 2 3 6, तो यही 1 4 5 2 3 6 इसके नीचे लिख दिया।
और इसको फिर सही क्रम में लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 से लिखने पे ये आ गया पिकनिक। तो यानी वो शब्द पिकनिक है जिसका ये कोड था। तो as we have observed in this case that remote has the same letters which are covered in the code. In this type of cases, we use the serial number of the letters of the word, not the serial of the alphabet. So I have written remote and I have given the serial number to the letters 1 2 3 4 5 6. There were 6 letters and I have given the serial number 1 to 6. Now I have written the code. So this was the code ROTEME. So I have selected these numbers from each letter. So which code should be ROTEME? So the new serial is 145236. So this serial number will be for the same type of code. So the code was PNIICC. So I have written the same serial over here. So I have given 1 for P, 4 for N, 5 for I, 2 for I, 3 for C, 6 for C. And now I have ordered these numbers ascending order. So in ascending order, they are 1, 2, 3, 4, 5, 6. And for these numbers, the letters are PICNIC. That means picnic. So the word for this code will be picnic. And picnic is the option D. That means D is the right option or D is the answer of the question. Thanks for visiting my channel. Please visit again. Thank you.